Vicky, Sardar Udham Singh, then Sam Bahadur. अब चाहे fictional character हो, you already worked with Ronnie on a film like Uri, where you played a fictional character. Then these real life characters. Bhai, how do you get into the skin of these characters? Like how? See, when you get directors like Meghna Gulzar, she doesn't let you just stop at the skin of the character. She makes you meet the soul of the character. So I'm just blessed that I had Meghna Gulzar guiding me for a role of a lifetime, which is of Field Marshal Sam Manekshaw. I think as an actor, I feel extremely fortunate that जिनके बारे में आप बचपन में किस्से कहानियाँ सुनते हो ना, बिकॉज माई मॉम एंड डैड बोथ हैव लिव्ड द 71 वॉर, दे वर इन पंजाब जब 71 की वॉर हुई थी, तो मैंने उनसे काफ़ी किस्से सुने थे कि अपना फील्ड मार्शल मानेकशॉ. So then to grow up and then to get an opportunity to see life through his eyes, and it's not just any other person but him. I feel very fortunate. I feel very grateful for Ronnie sirs and Meghna's trust in me, and I have my legs and fingers and everything crossed that I've done my best as I could as an actor, जितनी मेरे पास काबिलियत थी. But really looking forward to the release of the film that I've justified the legend. We're also watching these two lovely ladies reunited on stage. दंगल के साथ इनकी शुरुआत हुई थी. Sanya, I'll start this with you. दंगल, पगलैट, कटहल, जवान, all ensemble films. लेकिन उसके बावजूद, if you look at your filmography, you've managed to create a really strong character. जो बहुत ऐसी फिल्में आती हैं जो ensemble वाली होती हैं जिसमें हमें लगता है कि why didn't the women have a more meaty role in it? And you managed to do that. So are you very conscious in picking your scripts, या ये किस्मत है कि ये scripts जो हैं everybody is coming to you with them? Very conscious of that. Also, I think that's always there in the forefront when I'm picking up those characters, you know. मेरी लाइफ में मैंने ऐसी औरतें देखी हैं जो मुझे इंस्पायर करती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि when I'm playing such women on screen, और मुझे पता है कि वो जब कोई छोटी बच्ची या कोई देख रहा होगा, they will also get inspired and motivated. So that is always there in my forefront, and also a combination of luck. I think this was purely luck and my good kismat that I got a call from Meghna ma'am for this film, and when she told me please read this, I was like, I don't even want to read it. I want to do it, and I read it in one go so that I can call her back immediately and tell her that yeah, I'm on it, please call me on set as soon as possible. Now, I don't think it had too much to do with luck. I think Meghna pretty much sorted herself out. If you see her whiteboard, Character के नीचे नाम लिखा होता है. there's no luck concept there. And Fatima, आपके जो dialogues हैं इस फिल्म में, now you always imagined how Indira Gandhi was. She's one of the most powerful prime ministers that this country has ever seen. We lost her in '84. आप उसके बाद पैदा हुई. So how, when you've just read about this lady, when you've probably seen a couple of clips on YouTube, how do you get into the skin of a character who's not alive anymore, जिनके बारे में आप सिर्फ सुन के एक पहचान बना सकती हैं that ये शायद ऐसी थी? तो historical figure है and quite a big. हाँ जी, साइड. मेरे को साइड होने की. Sorry यार. मैं वॉइस ओवर ही कर देता हूँ यहाँ पे. वो बेचारे साइड में उतने हो गए आजकल. मैं निकल ही जाता हूँ. मैं बैठ जाता हूँ यार यहाँ पे. नहीं चलेगा. वो बहुत मार पड़ेगी मुझे कि मैं यहाँ पे. हाँ बताइए. Thank you प्रभु. They're allowing you in the frame. It's okay now. They're allowing you. फिर से पूछ लो. तो एक posthumous character जिनके बारे में. काफी बड़ा फिगर है, काफी हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, तो मैं तो बहुत डर गई थी. आई टोल्ड मेघना, लिसन यार मेघना, आई डोंट थिंक, आई एम नॉट श्योर. शी जस्ट सेड वन वर्ड, शी सेड ट्रस्ट मी. एंड क्या तो पुसर ये अलग ही. मैंने कहा ये तो दो लफ्ज थे. अरे इमोशन को समझो ना. फिल्म विल नो इट वाज टू वर्ड्स. तो मेरे लिए एक तो आई लुक अप टू हर, आई लव हर वर्क, आई हैव ऑलवेज एस्पायर्ड टू वर्क विथ हर, क्योंकि एज एन एक्टर आपका एक लिस्ट होता है कि आपको इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना है क्योंकि आपको उनका काम पसंद है. तो जब भी इन्होंने ये बोला, मैंने सोचा यार कौन बोल रहा है,
it's it's a privilege that I have that my director is telling me कि तुम trust कर लो मुझे, क्योंकि I just need to hear that. And to be honest, I have just done that and I'm so happy कि मुझे ये experience करने का मौका मिला, because ये दुनिया और ये world और ये कहानी का हिस्सा बनने का मुझे वापस मौका नहीं मिलेगा. Because for people like me जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, जो ज़्यादा पढ़ते नहीं है, जिनको ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है, मुझे लगता है कि आप जब फिल्म देखते हो या जब आप लिटरेचर पढ़ते हो, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और ऐसे किरदारों के बारे में, सैम मानेकशॉ, इंदिरा गांधी, आई हैड टू रीड अ लॉट अबाउट इंदिरा गांधी एंड आई रियलाइज देयर इज सो मच दैट इंडिया हैज़ गॉन थ्रू. And that is only because of this film. And now this film is being made, and a lot of people, young generation, उनको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे लोगों ने हमारे देश के लिए काम किया है, ताकि हम आज यहाँ पे बैठ के ऐसी फिल्म देख सकें. विकी का जो करियर ग्राफ है, एंड आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू रॉनी एंड मेघना. राजी के साथ जो हमने एक चेंज देखा विकी में, विच मूव टू उरी, दोनों के लिए इज ही योर म्यूज? बिकॉज मैम आई एम बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि आप जिस तरीके की डायरेक्टर हैं, यू सो क्लियर कि आप अपनी फिल्म में किसको चाहती हैं, एंड आई थिंक दैट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द गेट गो, जब आपने पहली बार एक कहानी के बारे में सोचा होता है. वेदर इट्स राजी, रॉनी, फॉर यू द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट यू हैव मेड, उरी, इज ही द क्ले जिसको आप मोल्ड कर सकते हैं? I don't think Vicky can be molded, but he's the clay. You know, for me, it's very strange because I love him. I love him as a person, and I love him as an actor. And then you put him in the role of Sam Manekshaw, who I completely adulate. So a lot of times, when I was loving what he was doing, I was not sure ki am I loving Vicky Kaushal the actor, or am I loving what he's doing with Sam Manekshaw. Having said that, right from Razi, when there is a character that you know that तो आईनो की जरूरत है, यू आर लाइक ये अभी मैं सैम मानेकशॉ हूं. नहीं यार, एक एक्टर को आईना तो चाहिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं हम. नहीं, पर ये आई थिंक 9 महीने जो ऐसे झुक के खड़े थे सैम की तरह, he had forgotten how to stand straight. He had to learn that again कि अब मुझे सीधे खड़े होना है. बोलो ना. नहीं, मैं अपनी सैम की जर्नी के बारे में अगर कहूँ तो इट स्ट्रेंजली स्टार्टेड विद राजी. हम पटियाला में शूट कर रहे थे राजी, और 2-3 दिन की छुट्टी थी, एंड वी वर होल्ड अप इन अ होटल, जहाँ पहली बार मेघना ने जिक्र किया था कि यू नो मेरी अगली फिल्म, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, इट्स बेस्ड ऑन फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ. एंड और मैं सुन रहा था कि अच्छा यार ये फिल्म है, पर मैंने उनके बारे में किस्से सुने थे, मुझे ये नहीं पता था वो दिखते कैसे हैं. ठीक है, तो मैं बात सुनते सुनते ना नीचे मैंने मोबाइल पे गूगल किया कि ये दिखते कैसे, फिर मैंने कहा ये तो बहुत हैंडसम है, मुझे तो ये रोल नहीं मिलेगा. तो फिर मैं फिर सिर्फ सुनता रहा. बट कहीं ना कहीं आई थिंक इन द यूनिवर्स तभी एक विश प्लांट हुई थी कि यार कहीं ऐसा एक रोल, बिकॉज शी स्पोक सो मच अबाउट दैट रोल एंड दैट लेजेंड, and I was like, wow, what a man, and I wish if I could just at some point in my career get an opportunity like this. And in 2019 May, I remember I got a call from Meghna. She lives in Bandra, and I happened to be in Bandra. कहाँ हो, क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, मैं बैंड्रा में हूँ, घर आ जाओ, कोल्ड कॉफी पीते. मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ. मैं चला गया, and she mentioned Sam Bahadur again. And she spoke again in detail about Sam Bahadur, the film, the person, family, army, everything. And post हो रहा है. तो उन्होंने मुझे कहा मैं स्क्रिप्ट देती हूँ, तुम पढ़ लो. मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट नहीं चाहिए. आपने मतलब आप मेरे बारे में सोच रहे हो, ये तो मैं कई सालों से मैंने यूनिवर्स में छोड़ा हुआ था कि आप सोचो मेरे बारे में, मैंने बोला नहीं था कभी, पर ये मैं कर रहा हूँ. उन्होंने कहा नहीं तुम स्क्रिप्ट पढ़ लो. एंड दैट नाइट आई वाज फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क, तो मैंने फ्लाइट में स्क्रिप्ट पढ़ी, एंड आई वाज वेटिंग कि कब ये 15 घंटे की फ्लाइट खत्म हो, मैं कॉल करूं उतरते ही कि प्लीज आप कहीं इधर उधर मत देखना, अब मैं कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस.
So that's how this journey happened. And in the beginning, how she said that, you know, we've tried to imbibe the spirit of Sam Manekshaw through the process of the film. And I think in every little detail, चाहे वो conception हो, scripting हो, जो तैयारी 1-2 साल की pre-production रही है, फिर shooting हो, till the release, I think I'm very proud of the fact that हमने it's not just a film we've made. Of course, at the end of the day, it's a film we've made. बट कहीं ना कहीं हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उसे हमारी इसी फिल्म की जर्नी में इम्प्लीमेंट करने का भी मौका मिला. दैट डिसिप्लिन वाज ऑलवेज देयर, दैट आर्मी डिसिप्लिन, दैट यू नो सेइंग दैट दिस फिल्म विल कम ऑन अ सर्टेन डेट अ ईयर बैक and then planning accordingly and then coming on that date and sticking to all the goals that she had marked out since a year, that you know इस तारीख को ये खत्म होगा, इस तारीख को ये खत्म होगा और ऐसे होगा. So that discipline that got imbibed from learning from such a character, that I'm really proud of, that we could get to learn so much from Field Marshal Sam Manekshaw. रिएक्शन होता है आपका? मुझे तो आया नहीं पॉलिटिक्स से. इंदिरा फिल्म में? हाँ, फिल्म पे का बात कर रहा हूँ. ओह जो सैम बहादुर को आता है पॉलिटिक्स का बुलावा वैसे. सर, इस फिल्म में ना एक लाइन है जो टीजर में भी है कि पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आर्मी ही मेरी लाइफ है. तो ये मेरे लिए पॉलिटिक्स बेस्ड फिल्म नहीं है, ये आर्मी बेस्ड फिल्म है. और जब भी आर्मी बेस्ड फिल्म से बुलावा आता है तो वो मेरा एक सॉफ्ट साइड है जहाँ मैं हमेशा टेम्प्टेड होता हूँ. बट you know, when it's about Field Marshal Sam Manekshaw, who's one of the most celebrated people from the Indian Army, then it's very hard कि आप ऐसे opportunity को जाने दोगे. तो it's not the politics, it's the army. एंड इंदिरा गांधी जी को किस नाम से बुलाते हैं आप इस फिल्म में? टीजर तक तो मैडम, बाकी आप फिल्म देखिएगा. एंड रोनी जी, क्लैश के बारे में आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे. एनिमल एंड साम बहादुर, कुछ बताना चाहेंगे आप कि कितना प्रेशर होता है आपको? फर्स्ट 1 तारीख को 2 फिल्में आ रही हैं, बड़ी फिल्म, आप अगर कुछ बता सकें. Only that question is on the 2 releases on the same day. Clash. Yeah, Clash. I got that. Thank you. देखिए, 2 things on that. Firstly, I think if you go back and look at the social media, we announced 1/12/23, I think almost a year back. Oh, sorry, almost a year. Yeah, 1 year back on 1/12/22, we announced 1/12/23. That's one part. Second, I think for everyone here, this is it's a very purani baat ho gayi yaar ki filmi mein always you talk about clashing, because you don't look at that in real life. You don't figure out today where Flipkart and Amazon will have the $1 billion days on the same days. Actually, everyone comes out and wants to consumer spend even more. You look at anything and everything in life, clash is not about anything else. This is a very old world, sorry to say, thinking in cinema here. Actually, audiences come out more. They like multiplicity of choice. Suddenly, when there's a TV screen and promotions that are very active in a particular season, you go there. So I think it's a very, very small way to look at the fact that films are clashing, because it's a whole world out there. Today, everyone is clashing with Instagram, you're clashing with Netflix, you're clashing with going out, you're clashing with so many other things. The last thing you want to worry about is clashing with anything else. नहीं पता. माफ Let's get कीजिए, that फिर, right. अगर वो उन्होंने खुद किया था, प्रेसिडेंट कलाम ने खुद किया था, उन्होंने नहीं मांगा. माफ कीजिए फॉर दिस, थैंक यू फॉर करेक्टिंग. Okay. इस सीन को बनाने में, क्या ये सीन है और बनाने में आपको किन सेंसिबिलिटीज का ध्यान रखना पड़ा है? क्योंकि 2 बहुत बड़े सुपर हीरो बोल सकते हैं हमारे देश के सामने बैठे हैं. देखिए, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जो ज़िंदगी है वो 2 फिल्मों में हो सकती है. एक जो उनकी एक्टिव मिलिट्री लाइफ है, फ्रॉम द टाइम ही जॉइन द इंडियन मिलिट्री अकेडमी टू हिज रिटायरमेंट एज फील्ड मार्शल, एंड देन आफ्टर दैट टिल हिज लास्ट डेज. I could make only 1 film, so I have 1 part of his life in the film. Having said that, I think हमारा सबका नज़रिया ये था कि this is a life we want to celebrate. We don't want to be sympathizing with him, because there is a lot more to him. उनकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, ना कि आपको अफसोस करना हो. अफसोस करने वाली कुछ ही शायद चीज़ें होंगी. तो हमको हमारा नज़रिया सही रखना है कि हमको उनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना है कि उनकी ज़िंदगी के कुछ हादसों को पर अफसोस करना है.
we have decided to celebrate his life with Sam Bahadur. Thank you. आपने जो दिखाया कि उनका शौर्य, बहुत वीर थे, बहुत धाकड़ थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि इंदिरा जी को भी ऐसा सुना दिया उन्होंने। लेकिन जो वो वॉर जीती थी वो उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड उससे जीती थी। तो वो जो इंटेलिजेंस है, जो उनकी जो कमांड थी, वो भी इसमें दिखाई है कि सिर्फ उनकी वीरता और देखिए, मैं एक तो ये नहीं समझती कि जो हमने वॉर जीती वो किसी एक इंसान का श्रेय है। उसमें हमारी तीनों डिफेंस फोर्सेस ने बहुत ही दिग्गज काम किया और बहुत ही मतलब ब्रेवरी से सब कुछ किया। So नहीं, strategy his is for the army, the navy was also there and the air force was also there. So I would not say that yes, he was a very big part of it, but I would not say he is solely responsible for it. That's my personal belief. Having said that,